Sure. Assalamualaikum. My name is Kiran Amir and I'm Director Operations at Parsec on Superhub. I would like to welcome you all to the third session in our series of Hepatitis Echo. It's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Please join the session through the iEcho email link to mark your attendance. We would also like to extend our gratitude to Gets Pharma for their ongoing campaign, Hep Aware Your Knowledge, Their Lifeline, under which this program is designed. This program consists of 6 sessions based on the new World Health Organization guidelines for hepatitis B for primary care physicians. Before I introduce you to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcement. We are part of a global movement called Project Echo based in USA, aiming to disseminate knowledge and best practices. Parsa Echo Pakistan started as a hub in 2017 and became the first super hub in Pakistan in 2021. Our objective is for communities providers to learn through video technology, participating in guided practice with specialist mentors. This allows them to treat patients otherwise referred out, ensuring patients with chronic condition receive high quality care without the need to travel and long waits. We protect patient privacy, so no information in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted. However, we encourage participation, so you can unmute yourself for a question or use the raised hand option and chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel. For CME credits, please get in touch with Uzair. CME credits are affiliated with Jinnah Sindh Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 12 hours. Please fill it as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of the participant, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whichever language you are comfortable in. Our expert for today's session is Professor retired Altaf Alam, is a former professor and head of gastroenterology, hepatology department at Sheikh Zayed Postgraduate Medical Institute, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Medical and Dental College, Lahore. He is trained gastroenterologist with more than 20 years of experience in his specialty and is author of more than 50 publications. He is serving as course director at Parsa Echo Pakistan since the beginning. He is responsible for developing the curriculum, observing quality of the content, evaluating speakers, and feedback evaluation. We are going to presenting 2 cases today, and Dr. Oj will be our case presenter. So without further delay, I will hand over to her. Ji, Dr. Oj. Ji, Assalamualaikum. Should I start the presentation now? Sure. Can you hear me? Please. So the first case I'm going to present is regarding a 32-year-old male working as a phlebotomist for last 8 years. He presented in our clinic with complaint of fatigue, dark urine, mild abdominal pain, and yellow discoloration of eyes since last 6 weeks. He is non-alcoholic and no comorbidities, and he had a recent history of needle stick injury and recalls another exposure incident a few months ago, but did not have the source patient's viral serology status. Family history was significant as his father died of HCC at age 55. On examination, jaundice was positive, right upper quadrant tenderness was present, and chest was bilaterally clear. Abdominal ultrasound was normal. The liver echo texture was normal, no splenomegaly or ascites. The lab investigations showed this, as you can see, the CBC is more or less normal, creatinine is normal, but the bilirubin and ALT were significantly raised. HBS antigen was positive. Anti-HCV and anti-HBS were negative. Anti-HB core was positive. And the HBV DNA qualitative was done, which was detected. The questions arising regarding this case are that what other investigations are required in this patient, and does he need antiviral treatment, and how do we follow up in this patient? Thank you. Thank you. Thank you very much, Oj. I welcome Professor Altaf Alam.
I'm Dr. Asad Chaudhary. So let me just quickly summarize some key issues here. We have a young male, a phlebotomist, and symptoms of fatigue and upper abdominal pain and the right side, and he is now jaundiced. His father died of hepatocellular carcinoma at 55 years of age. So surface antigen is positive and core antibody total is positive. PCR is detected. Bilirubin, as you can see, is close to 6 and ALT is 258. This is the information we have. And now how do we proceed? So we're really keen to hear from Professor Altaf Alam. Aj, if you can stop share your slide and then Altaf Saab will take over. Thank you. Okay, can you hear me and can you see my slide? Yes. Sir, we can hear you well. And so we can see the slides also. Okay, sorry, आजकल नेट का बड़ा प्रॉब्लम है, so you never know कि आपका नेट स्टेबल है या अनस्टेबल है. Anyhow, Asad has very nicely summarized this case, a young male phlebotomist, recent history of what looks like acute hepatitis, history of needle stick injuries in the past and recently as well, or family history mein father died of HCC. We don't know whether it was B, C or what, but father died of HCC. So this is all we have. Right upper quadrant tenderness, rest is all normal. ये investigations आपके सामने हैं. Bilirubin 5.8, ALT 258. वायरल serology को देखें, B surface antigen positive, anti-HBC total positive and B DNA detected. इसकी बेसिस पर आप 100% ये नहीं कह सकते कि ये acute है या chronic है या acute flare है of chronic hepatitis B. लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें कि what other investigations are required in this patient. याद रखें कि ये एक्सपोजर प्रोन हेल्थ केयर वर्कर है और इसको नीडल स्टिक इंजरीज हुई हैं इन द पास्ट एंड रिसेंटली एज वेल. सो इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि ये एक्यूट है या क्रॉनिक है या एक्यूट फ्लेयर ऑफ क्रॉनिक है. डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इसमें एंटी-एचबीसी आईजीएम होगा जो कि हमारे पास नहीं है. सो कोई बात नहीं, ये तीनों पॉसिबिलिटीज इस केस में हैं. हमें क्या इन्वेस्टिगेशंस चाहिए? मुझे 2 इन्वेस्टिगेशंस लाजमी चाहिए. एक तो डेल्टा वायरस एंटी-एचडीवी और एंटी-एचबीसी आईजीएम वुड बी हेल्पफुल लेकिन नॉट मैंडेटरी फॉर मैनेजमेंट. एचबीवी डीएनए क्वांटिटेटिव मैं लाजमी कराऊंगा इस पर्टिकुलर पेशेंट में. उसकी वजह मैं बताऊं कि जब आप इसका इलाज करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंप्लायंट है ट्रीटमेंट के साथ. 2, इसको रिस्पॉन्स हो रहा है या नहीं. वो नंबर्स की गेम है. हेपेटाइटिस बी में इट इज ऑल अबाउट नंबर्स. सो एक वायरल लोड ऑफ 1 मिलियन अगर है तो उसको आपने रिड्यूस करके अनडिटेक्टेबल लेवल पर लाना है. और अगर ये हो जाता है तो मुझे पता है कि पेशेंट दवाई ले रहा है. और अगर ये स्केप होता है तो मुझे ये पता है कि या तो पेशेंट ने दवाई नहीं ली या इम्यून जो रेजिस्टेंट स्टेन्स हैं वो बन गए हैं, जो कि हाईली अनकॉमन है आजकल की दवाइयों के साथ जो कि हम यूज करते हैं, एंटिकावेर, टिनोफोवेर, एलाफिनामाइड.
या टेनोफोविर डाइसोप्रॉक्सिल, उसमें ये बहुत अनकॉमन है। सो जनरली स्पीकिंग वायरल लोड अगर रिलैप्स करता है ऑन ट्रीटमेंट तो ये पेशेंट दवाई नहीं ले रहा, जनरली यही इसका मतलब होता है। तो इन्वेस्टिगेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 1, NT-HDV, HBV DNA by PCR quantitative and NT-HBC IgM हो ना हो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि डज ही नीड एंटीवायरल ट्रीटमेंट? द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड यस। उसकी मल्टीपल रीजंस है। नंबर 1, इसको फादर डाइड ऑफ HCC, सो फैमिली हिस्ट्री ऑफ HCC, एज्यूमिंग कि उसको भी हेपेटाइटिस बी था। नंबर 2, ये एक्सपोजर प्रोन हेल्थ केयर वर्कर है जिसका वायरल लोड आपने कम करना है, वरना इस जॉब से उसको हमें टेम्पोरेरली हटाना पड़ेगा। उसको हम किसी और जॉब पे लगा सकते हैं, लेकिन इस जॉब से टेम्पोरेरली हटाना पड़ता है जब तक उसका वायरल लोड अकॉर्डिंग टू ईजल गाइडलाइंस 200 इंटरनेशनल यूनिट से कम नहीं हो जाता। और जब वो 200 इंटरनेशनल यूनिट से कम हो जाए तो चाहे वो फ्लेबोटमिस्ट है, चाहे वो थिएटर की नर्स है, चाहे वो एम्बुलेंस वर्कर है जो कि फर्स्ट रिस्पांस वर्कर हम कहते हैं, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट है, चाहे वो सर्जन है, 200 इंटरनेशनल यूनिट से कम अगर वायरल लोड हो जाए तो वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ डू वी फॉलो अप इन दिस पेशेंट? इस पेशेंट को फॉलो अप करने के लिए हमें ऑफ कोर्स LFTs, सीरम क्रिएटिनिन, क्योंकि हम इसे जो दवाइयां देते हैं उसमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, TDF टैप से बहुत कम चांस है और एंटिकावेर से बहुत कम चांस है, बट डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए क्रिएटिनिन लाजमी उसमें शामिल करना है। मेल है, 32 है, इसलिए HCC की स्क्रीनिंग अभी नहीं करनी। 40 इयर्स की एज पर अल्फा फीटोप्रोटीन और अल्ट्रासाउंड से HCC की स्क्रीनिंग करनी है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। लेकिन मैं ये टेस्ट 32 इयर्स की एज में भी शामिल कर देता हूं ऑन फॉलो अप, क्योंकि वी हैव सीन कैंसर्स एट एन अर्लियर एज। और याद रखें कि अफ्रीकन कंट्रीज में 20 इयर्स की एज के बाद HCC की सर्विलेंस रेकमेंडेड है। सो आपके रीजन में अगर आप देख रहे हैं कि यंगर एज पे HCC अपीयर हो रहा है तो व्हाई नॉट फॉलो अप फॉर HCC या सर्विलेंस फॉर HCC एट अ यंगर एज। सो गाइडलाइंस कहती हैं 40 इयर्स की एज पर, लेकिन आप जल्दी भी कर सकते हैं। और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और HBV DNA by PCR क्वांटिटेटिव फर्स्ट। इनिशियली मैं LFTs और क्रिएटिनिन पे फॉलो करूंगा। 3 मंथली मैं HBsAg और HBV DNA by PCR क्वांटिटेटिव पर जाऊंगा। और ये इस सिनारियो का हमारा आंसर होगा कि इन्वेस्टिगेशंस क्या चाहिए, ट्रीटमेंट देनी है या नहीं। ऑफ कोर्स देनी है। क्या देना है इट इज इररेलेवेंट। आप एंटिकावेर दें, आप TDF दें। टैफ ओनली इफ देयर इज एज मोर देन 65 या बोन या किडनी डिजीज हो तो टेनोफोविर एलाफिनामाइड दे सकते हैं। ऑल्दो डेटा जब आ जाएगा तो आप किसी भी पेशेंट में टेनोफोविर एलाफिनामाइड दे सकते हैं, लेकिन अभी एंटिकावेर और TDF में से कोई एक इलाज। एंड फॉलो अप के लिए फ्रीक्वेंट एवरी 2 वीक्स इनिशियली जब तक ये सेटल नहीं हो जाता LFTs एंड क्रिएटिनिन, और 3 मंथ के बाद सरफेस एंटीजन एंड HBV DNA क्वांटिटेटिव। HCC की सर्वेलेंस एवरी 6 मंथ्स कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, ना करें 40 इयर्स की एज पे करें तो वो भी गाइडलाइंस के मुताबिक ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये बातें जो मैंने की हैं इसका बेसिस क्या है?
ईजल गाइडलाइंस को देखें, वो ये कहती है कि अगर हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि एक्सपोजर प्रोन प्रोसीजर्स कर रहे हैं, जैसे सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, फ्लेबोटमिस्ट, नर्सेस जो कि ऑपरेशन थिएटर में असिस्ट कर रही हैं, फर्स्ट रिस्पांस वर्कर्स जैसे एम्बुलेंस वर्कर्स हैं, वो सड़क के किनारे बुरे हालात में पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, उन सब के लिए वायरल लोड लेस देन 200 अगर हो जाए तो वो अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये टारगेट अचीव करने के लिए आपको न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स और न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स देने पड़ेंगे, जिसमें एंटिकाविर, टीडीएफ और टैफ शामिल है। ये बात याद रखें कि ये 200 की जो फिगर है ये ईजल गाइडलाइंस की तरफ से है। सीडीसी रेकमेंड करता है कि लेस देन 1000, और इन मेनी कंट्रीज इवन लेस देन 2000 इज एक्सेप्टेड बिफोर रिज्यूमिंग एक्सपोजर प्रोन प्रोसीजर्स। सो ये आपकी ईजल गाइडलाइंस कहती है। आई लाइक ईजल गाइडलाइंस की रिकमेंडेशंस क्योंकि ये बहुत सेफ वैल्यू को ले रही है, और इस हालत में आप कोई रिस्क नहीं ले सकते कि आपसे एज सर्जन पेशेंट को ट्रांसफर हो जाए। दिस विल नॉट बी एक्सक्यूजेबल, और पूरा हेल्थ सिस्टम आपका सू हो सकता है इस बेसिस पर अगर ये हो जाए। ईजल गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि अगर आप हेबी पॉजिटिव हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता फ्रॉम वर्किंग इन द प्रैक्टिस ऑफ सर्जरी, डेंटिस्ट्री, मेडिसिन और एलाइड हेल्थ फील्ड्स। लेकिन ये जो एक्सपोजर प्रोन फील्ड्स हैं, सर्जरी, डेंटिस्ट्री, गायनेकोलॉजिस्ट, फ्लेबोटमिस्ट, नर्सेज एंड फर्स्ट रिस्पांस वर्कर्स या एम्बुलेंस वर्कर्स, इनमें before they start performing exposure prone procedures, HBV DNA has to be brought below after treatment with nucleoside analogs. अगर वो more than 200 है तो आप ट्रीटमेंट शुरू कर दें, दोबारा चेक करें, उसको less than 200 लेकर आएं, और फिर आप ये काम शुरू कर सकते हैं। दूसरी गाइडलाइंस भी देख लें। WHO यहां पर भी यही है कि दोज हु आर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव एंड वायरीमिक यानी डीएनए पॉजिटिव है, और वो एक्सपोजर प्रोन प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व हैं, जिसमें ब्लड से और टिश्यूज और म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ पर्सन विद हेपेटाइटिस बी, और ये लोग जो हैं इनका ट्रांसमिशन का रिस्क है, एंड लेवल ऑफ HBV DNA शुड बी लेस देन 2000। जैसे मैंने कहा, ये रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री एंड गाइडलाइंस टू गाइडलाइंस वेरी करेगा, बट आई वुड रादर कीप इट एट लेस देन 200 बिकॉज ईजल गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 200 से नीचे जिन हमने हेल्थ केयर वर्कर्स का जो एक्सपोजर प्रोन प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उनका जब हमने रखा है तो हमें पिछले 20 इयर्स में एक ट्रांसमिशन भी रिकॉर्ड नहीं हुई। सो वो ज्यादा एम्फेटिक और ज्यादा वो वेट रखता है, बट चाइनीज गाइडलाइंस कहती हैं कि लेस देन 2000, सो फाइन। सो ये गाइडलाइंस की बेस पर हमने इस केस की मैनेजमेंट की है। ऑफ कोर्स नाउ द केस इज ओपन फॉर डिस्कशन। अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई कमेंट है तो प्लीज गो अहेड। थैंक यू वेरी मच सर। इसमें 3 सवाल हैं, चैट में भी आप देख सकेंगे। अगर आप स्टॉप शेयर कर दें, एक तो अल्ट्रासाउंड का सवाल है। अल्ट्रासाउंड का शायद जिक्र नहीं हुआ, तो हाउ कीन विल बी यू फॉर एन अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड हुआ था, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। ओके, ठीक इसकी है। हिस्ट्री, केस हिस्ट्री में है। और अच्छा, और सीटी स्कैन नो। सीटी स्कैन आप कुछ देखने के लिए करते हैं। आप क्या देखना चाहते हैं? आप जनरली स्पीकिंग डायनामिक सीटी या एमआरआई करते हैं फॉर अ डायग्नोसिस ऑफ HCC या कोई और एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है
अगर अल्ट्रासाउंड पे आपके SOL होता तो ऑफ कोर्स यस अल्फा फीटो भी करेंगे, बाकी ट्यूमर मार्कर्स PIFKA-2 भी कर सकते हैं और CT स्कैन, डायनामिक CT एंड MR भी कर सकते हैं. सो यस अल्ट्रासाउंड हुआ था, CT स्कैन की जरूरत नहीं है. और फाइब्रोस्कैन के बारे में आपका क्या ख्याल है? फाइब्रोस्कैन अगर आपके पास है और आप बगैर कॉस्ट के कर सकते हैं, वरना आप एप्री या FIB-4 पर भी गुजारा कर सकते हैं. इसमें AST नहीं था इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन आप नॉन इन्वेसिव टेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर फाइब्रोस्कैन है तो व्हाई नॉट. लेकिन एक्यूट स्टेज पे नहीं करेंगे. एक्यूट हेपेटाइटिस में फाइब्रोस्कैन फॉल्सली एलिवेटेड वैल्यूज देता है. सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो, चाहे वो फ्लेयर अप हो, चाहे वो एक्यूट हेपेटाइटिस हो, उसमें करने का कोई फायदा नहीं. जी, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं क्योंकि हम खुद फाइब्रोस्कैन करते हैं, तो जब भी ALT और ट्रांसएमाइनेजेस की वैल्यूज हाई हैं, अगर मरीज ने रिसेंटली मील लिया है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह में जहाँ पे कंजेशन आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे फाइब्रोस्कैन की वैल्यू एलिवेटेड आती है. तो यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट. अगर इतना हाई ALT है तो वो आपको वो हाई देगा, वो F4 की वैल्यू दे देगा, जबकि उसका नहीं होगा. तो एक्यूट हेपेटाइटिस में हम लोग फाइब्रोस्कैन वैसे भी नहीं करते. और एक और सवाल है, वैक्सीनेशन इन द फेस ऑफ ऑन गोइंग इन्फेक्शन. मेरे ख्याल में इसको आप अगर आंसर करेंगे, ये भी आंसर कर देंगे, अगर इसको एक्यूट, इसे लेट से 7 दिन पहले या 10 दिन पहले नीडल स्टिक इंजरी हुई है और आप उसको जॉन्डिस है, या रिसेंट अप टू मंथ भी ले जाएं, तो आप किस तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे इस सिनारियो में? ओके, वन थिंग इज वेरी क्लियर कि वैक्सीनेशन जिनको इन्फेक्शन हो गई है उनमें उसका कोई रोल नहीं है. सो इस पेशेंट में वैक्सीनेशन नहीं करनी. हाँ, ये जरूर है कि आपके पास एक इंडेक्स केस मौजूद है, आप उसके तमाम घर वालों को स्क्रीन करें, आइडियली बाय ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट, नहीं तो सिर्फ सरफेस एंटीजन, और उनमें से जो नेगेटिव हैं और अभी तक उन्होंने हिफाजती टीका नहीं लगवाया हुआ है, उनको हिफाजती टीका लगवा दें. बल्कि ये काम आप पूरे शहर और पूरे मुल्क के लिए करें. जो भी आपके पास आता है, आप उसका सरफेस एंटीजन चेक करें, वो नेगेटिव है और उसने हिफाजती टीका नहीं लगवाया हुआ है, तो आप पूरे शहर को, पूरे पाकिस्तान को हिफाजती, पूरी दुनिया को हिफाजती टीका लगवाएं. सो कॉन्टैक्ट्स को यस, बट पेशेंट को वैक्सीन की जरूरत नहीं. जी, एक और क्वेश्चन है कि ये पेशेंट हमारा हेल्थ केयर वर्कर था. व्हाट इफ द पेशेंट वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन, कहीं पे क्लर्क था या और कोई और काम करता था, तो उस सूरत में, और उसकी फैमिली हिस्ट्री भी HCC की ना हो, तो फिर हम क्या करते हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन. राइट, उसको आप मेरिट पर ट्रीट करेंगे, जैसे गाइडलाइंस आपको कहती हैं. WHO गाइडलाइंस हैं, ईजल और ASLD गाइडलाइंस हैं. चाइनीज से मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर पेशेंट का आप DNA करें और क्वांटिटेटिव भी करें, वरना आप उसको फॉलो नहीं कर सकेंगे. आपको पता नहीं होगा कि कैसे फॉलो करना है, वो दवाई ले रहा है या नहीं ले रहा, उसका नंबर्स क्या है, आपका टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा. और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जो आप टेस्ट करते हैं पाकिस्तान में रोश या एबट के सिस्टम पर, वो आपको क्वांटिटी देता है. कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जो क्वांटिटी नहीं देता. ये सिर्फ इस मुल्क का कमाल है कि यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का खेल खेला जाता है, ताकि पेशेंट से 3,000 रुपए ज्यादा लिए जाएं और क्वांटिटी बताई जाए. अगर मैं लैब को कांटेक्ट करूं और मैं लैब को वालों को जानता हूं, तो वो मुझे क्वांटिटी दे देंगे, क्योंकि उन्होंने की भी है. अगर उन्होंने रिलायबल मेथड से एबट या रोश के सिस्टम पर टेस्ट किया है, तो वो क्वांटिटी देगा. सारे सिस्टम्स क्वांटिटी दे रहे हैं, लेकिन इसी मुल्क में सिर्फ क्वालिटी और क्वांटिटी का चक्कर है. वैसे तो हेपेटाइटिस बी में इट इज ऑल अबाउट नंबर्स, फॉर डायग्नोसिस, फॉर ट्रीटमेंट, फॉर फॉलो अप. जहां तक ये क्वेश्चन था कि ये क्लर्क है और इसकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, तो आई विल गो ऑन मेरिट. एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ है इसको,
या फ्लेयर अप ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस हुआ है, बी डीएनए इसका बहुत ज्यादा होगा, तो ऑन मेरिट इसको ट्रीटमेंट तो मिलनी है, चाहे ये फैमिली हिस्ट्री ना हो. बट एज आई सेड, इट इज ऑल बेस्ड ऑन लिवर फंक्शंस, फाइब्रोसिस एंड एंड नंबर्स, वायरल नंबर्स. उसके बगैर आप फैसला नहीं कर सकते. अगर हम इसकी लेट से वेट करना चाहते हैं कि कोर आईजीएम पॉजिटिव आ गया है, तो हम किस तरह वेट करेंगे और कैसे आप फॉलो अप करेंगे टू नो कि ये एक अडल्ट पेशेंट है और इसके चांसेस हैं कि ये हेपेटाइटिस बी को क्लियर कर जाएगा स्पॉन्टेनियस, तो हम कितना वेट करेंगे? राइट. नॉर्मली स्टेबल एक्यूट हेपेटाइटिस में आप इलाज नहीं देते. आप एक्यूट हेपेटाइटिस बी में किसको इलाज देते हैं? जहां वो सिवियर एक्यूट या प्रोलॉन्ग्ड हो, जो मैनिफेस्ट करता है बाय टाइम पीरियड, हायर बिलिरुबिन एंड कोएगुलोपैथी, या जो इम्पेंडिंग एनकेफेलोपैथी या इवन एनकेफेलोपैथी में जा चुका है. ये वो पेशेंट है जिसको हम कहते हैं सिवियर एक्यूट हेपेटाइटिस बी. इसमें आप इलाज जरूर करेंगे. और अदरवाइज स्टेबल एक्यूट हेपेटाइटिस बी में आम तौर पे 6 महीने के अंदर वायरस भी नेगेटिव हो जाएगा, लिवर के टेस्ट भी नॉर्मल हो जाएंगे. इस दौरान आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, एक्सपोजर से लोगों को बचाएंगे, फैमिली को वैक्सीनेट करेंगे, और अगर 6 माह पर वो पॉजिटिव है तो रीअसेस करेंगे कि ये क्रॉनिक फेज में चला गया है, तो अब इसको इलाज करना है या नहीं करना. लेकिन 95 के करीब परसेंट के करीब एडल्ट पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं from acute hepatitis B. So 6 months is the time period to decide on whether to treat or not to treat in a stable acute hepatitis B. सर, एक और क्वेश्चन है कि क्या हम इसको हेपामर्स देंगे, एल ऑर्निथिन, एस्पार्टेट, और ये मुख्तलिफ नामों से आता है, लेविजॉन और ये, तो उसका कोई रोल है ट्रांसएमिनेसेस कम करने के लिए? शॉर्ट आंसर इज नो विद कैपिटल एन, क्योंकि ये दवाई अमेरिका में मिलती ही नहीं है, यूरोप में, यूके में मिलती ही नहीं है. सो हम कोई इतने अफलातून नहीं है कि हमारे पास मैजिक ट्रीटमेंट आ गई है और हम देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. इनका कोई रोल नहीं है. डोंट बी फूल्ड बाय एडवर्टाइजिंग बाय द ड्रग कंपनीज. जो रोल है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट का है, और हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट अगर इंडिकेटेड हो उसका है. और सिलीमाइरिन के बारे में भी कमेंट दे दें. नो रोल, ऑल्दो people have been using it. इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है, लेकिन देर आर मैनी अदर मेडिसिन जिसके बैड इफेक्ट्स भी हैं. सो सिलेमरिन का इस सिचुएशन में कोई रोल नहीं है. यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज अननेसेसरली. रोल सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंड हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट का है, न्यूक्स या का, और बाकी कुछ नहीं. थैंक यू वेरी मच सर. आई थिंक वी क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस, ताकि हमारे पास उसके लिए भी टाइम हो. डॉक्टर ऑज, आपके पास अगर नेक्स्ट केस है तो काइंडली. जी सर. So the second case is regarding a 45-year-old female nurse working in a busy urban hospital, presented in our OPD with complaint of fatigue, weight loss, and occasional abdominal pain and nausea over the last 3 months. She recalls needle stick injuries on more than one occasion and vaguely remembers being vaccinated for hepatitis B. She is non-diabetic and non-hypertensive, no family history of CLD or hepatocellular carcinoma. On examination, she appears pale, liver 2 fingers enlarged, and ascites was not that significant. And abdominal ultrasound showed chronic liver disease, mild splenomegaly with a hypoechoic mass in right lobe of liver.
In the investigation parameters, platelets were 125 and HP 10.5. ALT, AST were slightly raised and alpha fetoprotein was 90. Anti-HCV was negative, HBS antigen was positive, and anti-HBS were negative, and anti-HB core total was positive. HBV DNA viral load was more than 1 million international units per ml. And the questions regarding this case are that does she need other investigations? And should we start antiviral treatment for hepatitis B virus first and then take up HCC or focus on HCC only? What should be the treatment plan? And is hepatic mass biopsy helpful in this situation or not? थैंक यू आज लेट मी समराइज, एक मैं करेक्शन कर दूं, जो वायरल लोड है वो तकरीबन 2 लाख यूनिट के करीब है, 1 मिलियन नहीं है, 195,879 इज द नंबर एनी हाउ. सो हमारे पास एक 45 इयर्स ओल्ड नर्स हैं, फीमेल नर्स हैं, और उनके सिम्टम्स फटीग और एब्डोमिनल पेन के, नीडल स्टिक इंजरीज की हिस्ट्री है, और शी सेज शी माइट हैव बीन वैक्सीनेटेड फॉर हेपेटाइटिस बी. शी इज पेल, और अल्ट्रासाउंड पे वी हैव अ लीजन. शी डिनाइज एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ CLD और लिवर कैंसर. आप अगर टेस्टों में देखें तो प्लेटलेट्स लोइश हैं 125, क्रिएटिनिन इज नॉर्मल, ट्रांस एमिनेजेस बहुत ज्यादा हाई नहीं है, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, कोर एंटीबॉडी टोटल हेपेटाइटिस बी की पॉजिटिव है, और वायरल लोड इस तकरीबन 2 लाख यूनिट के करीब है, और अल्फा फीटोप्रोटीन इज 90. तो यहाँ पे अब द क्वेश्चन इज, मीन 45 बहुत ज्यादा एज नहीं है, तो वी विल गो ओवर टू प्रोफेसर अल्ताफ आलम, कीपिंग द क्वेश्चंस इन माइंड. और इफ यू कैन स्टॉप शेयर, तो अल्ताफ साहब फिर अपनी स्लाइड शेयर कर लें. आप म्यूटेड हैं सर. Can you hear me now? Yes, we can hear you now. Okay. So Asad साहब ने समराइज कर दिया, there is no need to do that again. लेकिन मैं सिंप्लीफाई कर दूं कि 45-year-old फीमेल जिसको वरीसम सिम्टम्स हैं, रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं, और अल्ट्रासाउंड पे उसके क्रॉनिक लिवर डिजीज के फीचर्स हैं विद अ mass in the liver. Alpha fetoprotein is elevated. ये significant है या नहीं, ये very difficult to say, but it certainly rings alarm bells with this ultrasound. Surface antigen positive, viral load high. आप अगर पुरानी गाइडलाइंस भी लें तो 2000 से ज्यादा हो तो इलाज करना चाहिए. एंटी-HBC पॉजिटिव होगा, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है वो तो पॉजिटिव होगा ही. और प्लेटलेट्स का कब होना, AST ALT रेशियो का रिवर्स होना, ऑल सजेस्टिव ऑफ क्रॉनिक या सिरोसिस लिवर. तो डज शी नीड एनी अदर इन्वेस्टिगेशंस? द आंसर इज यस. एक तो आप कराएंगे इसमें anti-HDV, डेल्टा वायरस हर बी के पेशेंट में कराएंगे, वॉट एवर द वायरल लोड, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन हर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव में आप डेल्टा वायरस कराएंगे. सो anti-HDV. नंबर 2, मुझे बहुत तसल्ली होगी अगर another tumor marker is done like PIVKA2 which is available. अल्फा फीटोप्रोटीन L3 अवेलेबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट PIVKA2 इज अवेलेबल. सो वो कराएंगे. और इसमें फॉरन डायनामिक CT या MRI. जनरली स्पीकिंग हम डायनामिक CT या कंट्रास्ट एनहांस CT ही कराते हैं, क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल है, चीपर है, और हमें वही आंसर मिल जाता है इन मोर देन 99.9% ऑफ केसेस. सो ये तो इन्वेस्टिगेशंस की बात हो गई.
question ke should we start treatment for HBV first and then take up HCC or focus on HCC only? The answer is very clear based on the guidelines that we should always treat hepatitis B. Uski wajah main bata दूं. One, it may prevent progression of chronic liver disease. There is sufficient data on literature to suggest that. Two, एक जिसके कैंसर बना है उसका दूसरी जगह भी बन सकता है. So it reduces the chances of getting further HCC. इसका चाहे आप पैलिएटिव केयर करें या पैलिएटिव ट्रीटमेंट दें या क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दें, दोनों सूरतों में जो रिकरेंस ऑफ HCC है वो कम होगा उन लोगों में जिनका आप इलाज कर रहे हैं. So the answer is fairly straightforward. Treat for HBV and treat now. Don't wait for CT scan and TACE and transplant and resection, but treat now. So treat immediately. What should be the treatment plan? 45-year-old female hai, creatinine normal hai, all three drugs, Entecavir, TDF और TAF यहाँ पे possibilities हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. So any drug that you can lay your hand. For example, आपके गवर्नमेंट के हेपेटाइटिस क्लिनिक में TDF मिलती है तो वो दे दें, एंटीकावेर मिलती है तो वो दे दें, टैफ मिलती है तो वो दे दें. फ्री ट्रीटमेंट. अगर फ्री नहीं है तो फिर जो भी इनमें से चूज करें, कोई फर्क नहीं है. फाइनल क्वेश्चन, इज हेपेटिक मास बायोप्सी हेल्पफुल इन सच सिचुएशन? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो यही है कि नो. बायोप्सी हम HCC में बहुत रेयरली करते हैं, और कब करते हैं? जब अल्फा फीटोप्रोटीन, PIFKA2 और इमेजिंग फाइंडिंग्स 1 या 2, CT डायनामिक किया, आंसर नहीं मिला, डायनामिक MRI किया, आंसर मिल गया तो ठीक है. अगर फिर भी ना मिला तो वेरी वेरी रेयर टू डू बायोप्सी. ये नहीं है कि आज तक हमने कभी बायोप्सी नहीं की. SOLs लिवर करते हैं, बट इफ नीडेड, और ये बहुत रेयर होता है आजकल, इन लेस देन 1 to 2% ऑफ केसेस से ज्यादा में बायोप्सी नहीं की जाती. HCC का डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन इमेजिंग एंड इमेजिंग प्लस सपोर्टेड बाय ट्यूमर मार्कर्स. So answer is simple answer is no, but yes, occasionally when the diagnosis is not clear, you may need liver biopsy. ये guidelines में अगर हम देखें तो WHO की guidelines भी यही कहती हैं कि antiviral therapy reduces the risk of HCC and has benefits even among people with HCC, including decreased risk of recurrence following curative treatment, decreased necroinflammation, and reduced risk of hepatic decompensation. So progression कम होगी liver disease की, और further HCC का risk कम होगा जिनका आप इलाज करेंगे. Chinese guidelines भी इसमें यही कहती हैं कि अगर HCC किसी का है और पेशेंट DNA पॉजिटिव है तो one should treat, चाहे वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जा रहा है या पैलिएटिव ट्रीटमेंट की तरफ जा रहा है. सो ट्रीटमेंट आपने हेपेटाइटिस बी की जरूर देनी, और ये गाइडलाइंस में क्लियरली लिखा हुआ है. सो आई स्टॉप हियर. अगर कोई क्वेश्चन है तो या कमेंट है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर योर कमेंट्स और क्वेश्चंस विद अस. जी सॉरी, ये एक क्वेश्चन है जी. शुड वी गो फॉर स्क्रीनिंग गाल्बन EGD लिखा, EFD लिखा हुआ है, स्क्रीनिंग एंडोस्कोपी लिखा हुआ है. Right. Yes, according to guidelines, every cirrhotic should have endoscopy.
especially if platelet count is less than 100. So yes. और एक क्वेश्चन ये भी था कि ई एंटीजन करना चाहिए या नहीं. अगर या जी सर ई एंटीजन के लिए पूछ रहा था सर, मैं ई एंटीजन करवाना है इस पेशेंट में सर. राइट. Yes, I do it in every patient except in those जिसमें सिरोसिस है, जैसे इस पेशेंट में है. सिरोसिस के पेशेंट में चाहे ई एंटीजन पॉजिटिव हो और ई एंटीजन नेगेटिव हो, इलाज में कोई फर्क नहीं है. लेकिन अगर नॉन सिरोटिक है तो टारगेट्स भी फर्क हैं और स्टॉपिंग रूल्स भी फर्क हैं. सो yes, E antigen is important for me in a non-cirrhotic patient. Cirrhotic patient में treatment is lifelong, whether E antigen positive or E antigen negative. So इस particular patient में E antigen का role नहीं. Okay, sir. Our concept is clear that E antigen is not so much necessary in non-cirrhotic patient. Thanks, sir. मेरा एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो, एक ऐसी नर्स जिसको क्रॉनिक लिवर डिजीज और सिरोसिस हो चुका हुआ है हेपेटाइटिस बी से, और आज वो लिवर कैंसर के साथ प्रेजेंट कर रही है, तो वो खुद तो नीडल स्टिक इंजरीज की बात कर रही है, तो जो अगर कोई पेशेंट उससे इन्फेक्ट हुआ है और उसको आप कैसे देखेंगे? आई एम जस्ट थिंकिंग जिसके कैंसर भी है, जिसको हेपेटाइटिस बी भी है, डाउन द रोड एक पेशेंट आता है जिसकी उसने केयर की है और वो सम आप उसी अस्पताल में आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो आई एम जस्ट आस्किंग. इसीलिए तो मैंने कहा आपके पास सरदर्द के साथ पेशेंट आता है, प्लीज स्क्रीन फॉर हेपेटाइटिस बी एंड वैक्सीनेट. जब आपकी पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी तो ये रिस्क नहीं रहेगा, चाहे नीडल स्टिक इंजरी उससे हो रही है या नहीं हो रही. जो पॉजिटिव हेल्थ केयर वर्कर है वो हाई वायरल लोड के साथ उसे ब्लड का एक्सपोजर दिए जा रहा है. सो वैक्सीनेशन इज द की इन हेपेटाइटिस बी. सो मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट्स को, पूरे शहर को, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को स्क्रीन करें और वैक्सीनेट कर दें ताकि ये प्रॉब्लम ही ना रहे. और स्पेशली मेरे ख्याल में जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस के लिए एक हमारा मैसेज है वो ये है, अगर ये नर्स आपके क्लिनिक में आती है तो आपने एक काम करना है, इसी डेटा के ऊपर आप वो टेस्ट जरूर ऑर्डर करें जो अल्ताफ साहब ने बताए हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें. पहली बात, आपने TDF देनी है, टैप देनी है, टैकाविर देनी है, जो भी है आप उसको शुरू कर दें और अपने नियरेस्ट यूनिट से, क्योंकि देखें ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. वो बल्कि हर कोई आपको शाबाशी देगा और मरीज का भला होगा उसके अंदर. लेकिन जो HCC की मैनेजमेंट है, आपको इस हद तक तो आप का है कि CT स्कैन की फाइंडिंग्स क्या होती हैं और बाकी कुछ है, लेकिन आपको यू हैव टू फाइंड आउट, और आप हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका नियरेस्ट जो भी यूनिट है टर्शरी केयर या जो ऐसे लोग जो लिवर कैंसर को हैंडल करते हैं, यू हैव टू रेफर दैट पेशेंट. यू कैन नॉट सिट ऑन दैट पेशेंट, क्योंकि अगर इसकी लेट से 3 सेंटीमीटर लीजन है, इसके नंबर्स बुरे नहीं हैं जो अभी भी हमारे सामने हैं, अगर उसका फॉरगेट अबाउट लिवर ट्रांसप्लांट, ये माइक्रोवेव एब्लेशन हो जाती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, ये क्यूरेटिव है. अगर आप इस यू टेक केयर ऑफ द कैंसर विच इज सक्सेसफुली एब्लेटेड, द ट्यूमर इज गॉन, और आपने दवाई दे दी है, नया ट्यूमर बनने से बचा रहे हैं आप, तो यू विल लिटरली सेव the life of this patient and she will live for many years, who knows. तो इसलिए आप को ये पता होना चाहिए कि आपने ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है, एंड यू डोंट वेट कि हम जी वो मैं भेजूं, उसको 2 महीने लग जाएंगे जो आजकल हालात हैं. आप ट्रीटमेंट शुरू कर दें, उसको अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन एक्सप्लेन करें, और इस हिस्ट्री पे बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये वी विल बी एबल टू सेव दिस लेडी. Any further comments? आप please unmute करके you can join in discussion.
नॉट नेसेसरी, आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। मेरे ख्याल में लग रही है राय कि आपको हर चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है। आई थिंक अगर किरण आपकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट है, आई एम वंस अगेन थैंकफुल टू प्रोफेसर अल्ताफ एंड गेट्स टीम फॉर बीइंग अ वंडरफुल होस्ट, जो सारी मीटिंग को और वो कर रहे हैं। आई वी रियली अपोलोजाइज कि हमें ये आपको बार बार आई एको और ईमेल के जरिए कहना पड़ता है, बट दैट इज समथिंग विच इज बिकमिंग मैंडेटरी फॉर अस आल्सो। किरण, कोई फर्दर नेक्स्ट सेशन के बारे में अगर आप बता सकें। और आप म्यूटेड हो, सॉरी आप म्यूटेड हैं। जी सॉरी जी डॉक्टर असद, हमारा नेक्स्ट जो सेशन है इट्स ऑन 4 सितंबर और ये भी केस बेस्ड डिस्कशन है, HBV इन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, और ये डॉक्टर जीशान अली हमारे स्पीकर हैं। और इसके अलावा जो है डॉक्टर ताफ आलम का बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर सदाब का भी, डॉक्टर औज का भी। एंड वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर टीम एट पारसा ट्रस्ट एंड पारसा एको पाकिस्तान। मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज। उजैर, यू कैन कॉल ऑफ द मीटिंग। Sure, ma'am. Allah Hafiz.